بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سید المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب المبین وصدق الصادقین صاحب الدعوات نبویہ والصالح الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلمت الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجت الرجویہ والجور التقویہ والنقاوت نقویہ والغیبت اصغریہ والغیبت الہیہ القائم بامر اللہ۔ واہ پروردگار عالم سے بار الہ تجھے واسطہ تیری خدائی کا، تجھے واسطہ تیری کبریائی کا، پنجتن پاک کا واسطہ ہے ہمارے امام قصد کا، چہاد معصومین کو صدقہ 1,24,000 پیغمبر کا واسطہ، زمین و آسمان چرین پر ان تمام اشرف المخلوقات کا واسطہ، کعبہ اور کربلا کا واسطہ، مکہ اور مدینہ کا واسطہ، چاروں آسمانی کتابوں کا واسطہ، چاروں آسمانی فرشتوں کا واسطہ، بار الہ واسطہ تجھے تیرے پاک ناموں کا، عظمتوں کا، رحمتوں کا، معرفتوں کا، رفتوں کا، نعمتوں کا واسطہ۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، یا حی یا قیوم یا جبار یا رزاق یا قہار یا ستار یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ بار الہ تجھے واسطہ بالخصوص ان ایام ازا کا، بار الہ تجھے واسطہ بالخصوص اس فرش ازا کا، بار الہ تجھے واسطہ بالخصوص میں تمام مومنین بہنوں کا جو اپنے اپنے گھروں سے یہاں قرص حسین ابن علی دینے تشریف لائی ہیں، اور بار الہ تجھے واسطہ بالخصوص اس پہلی عزادار کا، اس پہلی مومنہ کا کہ جس کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے جملہ میرا نہیں ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے ہماری جدہ ہماری دادی زہرا سب سے پہلے تشریف لاتی ہیں اور در خانہ داخل نہیں ہو جاتی، آپ کی میری طرح آ کر یہاں فرش عزا پر بیٹھ نہیں جاتی، ہمارے اور آپ کی طرح ٹیک نہیں ڈھونڈتی کہ آ کر بیٹھ جائیں، کس حالت میں تشریف لاتی ہیں کہ ایک ہاتھ شکستہ پہلو پر ہوتا ہے، ایک ہاتھ دعا میں بلند ہوتا ہے اور دروازے پر کھڑے ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے مومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، ابھی آ کر آپ بیٹھے نہیں ہیں، اگر یا حسین کہہ کر زانو پر ہاتھ نہیں مارا، یا زہرا یا زینب کہہ کر سینے پر ہاتھ نہیں مارا، ابھی پرسہ نہیں دیا ہے، اور آنے والے کو ہاتھ اٹھا کر زہرا دعا دیتی ہے، پروردگار میرے بیٹے حسین کے رونے والے عزادار آئے، پروردگار جو بی بی داخل ہوئی اپنا گھر نہیں ہے اپنا گھر عطا فرما، پروردگار جو بی بی آئی اس کا شوہر بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، پروردگار جو بی بی آئی اس کے بچے بیمار ہے صحت اور زندگی عطا فرما، پروردگار جو بی بی داخل ہوئی نوجوان بیٹیوں کی ماں ہے، نوجوان بیٹوں کی ماں ہے، مولا اس کی بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب بہترین فرمائے، قصہ مختصر اپنے آپ پر نگاہ ڈالا کرے، جب داخل ہوا کرے نا سلام کرتے ہوئے آیا کرے، کیا معلوم زہرا آپ کے سلام کا جواب دے، واجب ہے نا سلام کا جواب دینا، آ کر یہاں بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا، اے پروردگار میری بی بی اٹھے ہوئے ہاتھ کے صدقے میں، یا پروردگار حسین بادشاہ کی ماں کے صدقے میں، پروردگار جس گھر میں یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے پروردگار بات پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا اس فرش کو قبول مقبول عطا فرمائے، بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ یہاں پہ تابوت زہرا تابوت مولا حسین رکھا ہوا ہے، کس کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہو بڑی دور سے بی بی آئی ہے اور کس حال میں تشریف لائی ہے عزادار ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا دے رہی ہے، دعا مانگو جو مانگنے آیا ہے زہرا کے دربار میں، حسین بادشاہ کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، محمد کی بیٹی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اپنے دامن کو دیکھ کے نہ مانگنا، زہرا کی رحمت کو دیکھ کر مانگنا، زہرا کے کرم کو دیکھ کر مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے پروردگار اس گھر کے تمام پریشانیوں تکالیف اور آفتوں کو دور عطا فرمائے، دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کر پروردگار اس گھر کے
नौजवान बेटों बेटियों के नसीब बेहतरीन अता फरमाए, इसमें कारोबार में बेहतरीन बरकत अता फरमाए। हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा मौला इस घर के सरबराह का साया सर पर दायम अता फरमाए। जितनी मोहब्बत और चाहत और खुलूस से ये फरशेज़ा बिछाया गया, ताबूत सजाया गया, सोचा करें कि जब फरशेज़ा बिछाया जाता है तो सिर्फ आप और मैं फरशेज़ा बिछाने वाले नहीं हैं, बड़ी दूर से बीवियाँ आई हैं, कोई मदीने से तशरीफ़ लाई है, कोई मक्का से तशरीफ़ लाई है, अरे कोई शाम से तशरीफ़ लाई है, कोई जिंदान से तशरीफ़ लाई है, और कुछ लोग तो करबला के तपते सहरा से तशरीफ़ लाए। अज़ादारों इस फरशेज़ा की सत्ती में दुआ करना वाला जितने हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं वाला यहाँ से लेकर वहाँ तक वाला तमाम मेरी माँ बहनों की तमाम दुआएं कबूल अता फरमाए। दुआ कीजिएगा, मुझे घर वालों की जानिब से कोई हुक्म नहीं है दुआ का, दुआ कीजिएगा। लोग कहते हैं कि नेता दुआ करवाती है दुआ पूरी हो जाती है ना, कोई भी मिंबर हुसैन पर आ जाए, मिंबर अली पे आ जाए, मिंबर मोहम्मद पे आ जाए, और यकीन कामिल के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर बैठ कर जब दुआ मांगी जाती है ना और तमाम माएँ आमीन कहने वाली हैं, माएँ कौन है कि परवरदिगार अपनी मोहब्बत को शबाहत देता है आपकी मोहब्बत से। हाथ उठाकर दुआ कीजिए मौला मेरा हर माँ का कलेजा ठंडा था फरमाए। दुआ कीजिएगा हाथ उठाकर बिलखुसूस परवरदिगार घर वालों की तमाम मुश्किलात इस पर जो दुख दर्द तकलीफ है घर वालों के दिल वाला दूर अता फरमाए। जिन्होंने बेहतरीन मर्जियाँ पढ़ा मौला तमाम मर्जियाँ खान की मुश्किलात को हल अता फरमाए। दुआ कीजिए जो मेरी बहन रो रही है मौला आपके आंसुओं को कबूल अता फरमाए। दुआ कीजिएगा मेरी पहली सांस से लेकर अब तक जिसने जहाँ पे दुआ करने के लिए कहा मौला सबकी मुश्किलात को हल अता फरमाए। दुआ कीजिए मौला हर माँ का कलेजा ठंडा अता फरमाए, हर सुहागन का सुहाग सलामत अता फरमाए, तमाम बच्चियों के नसीब बेहतरीन अता फरमाए, जिसके घर में कोई शैतान नहीं बिछा मौला सबको तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिएगा हाथ उठाकर परवरदिगार हम सबको बेहतरीन अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा मौला बेहतरीन 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 नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा मौला आपके सदके में मेरे घर वालों मेरे बहन भाइयों की, मेरे ससुराल मेरे बच्चों की मेरी मुश्किलात को हल अता फरमाए। हाथ उठाकर या इमाम ज़माना अल अजल अल अजल हाथ बुलंद करके या इमाम ज़माना अल अजल अल अजल अल्लाह से या इमाम ज़माना अल अजल अल अजल अल अजल। घर वालों की सेहत और सलामती के लिए, तमाम दुख और परेशानियों से दूरी के लिए, तमाम बच्चों के रिज़्क़ तमाम बच्चों की बेहतरीन नसीबों के लिए, नौजवान बेटों के कारोबार में रोजी रोटी में बरकत के लिए और इस फरशेज़ा से कबूलियत के लिए बुलंद सलवात पड़ेगा। फातिहा करूँगा बिलखुसूस बहत्तर शहीदान करूँगा लसराने करूँगा जहाँ के मसूमीन बिलखुसूस जनाब मौला हुसैन। एक सूरह फातिहा बनाए सामने सवाब पढ़िएगा। घर वालों के तमाम उन लोगों के लिए कि जो दुनिया से जा चुके हैं, वक्त करीब है कि हम भी चले जाएंगे, हमें भी याद किया जाएगा। दुआ कीजिए मौला तमाम मरहूमीन को, खानदान के दो सहबाब में, मैं कि मेरे ससुराल में रिश्तेदारों में जितने लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, दुआ कीजिए मौला तमाम मरहूमीन को करवट कर जन्नत नसीब फरमाए। इनकी सदके में आपके और मेरे खानदान के मरहूमीन को करवट कर जन्नत नसीब फरमाए। उस जहान की मुश्किलात को हल अता फरमाए। दुआ कीजिए कब्र की और दोज़ख की आग से बचाए। दुआ कीजिए आलम बरज़ख में तमाम मुश्किल कुशाई अता फरमाए। सूरह फातिहा बनाए सवाल। अपने अपने गुनाहाने कबीरा सगीरा से बख्शिश के लिए तवज्जो फरमाइएगा। अपने अपने गुनाहाने कबीरा सगीरा से बख्शिश के लिए बुलंद सलवात पढ़ेगा मोहम्मद बेहतरीन सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। अज़ीज़ान
तमाम तारीफ़ें, तमाम हमद व सना सदावार हैं उस मालिक हकीकी के लिए, उस परवरदिगार आलम की ज़ात पाक के लिए कि जो रहमान रहीम है, गफूर रहीम है, पालने वाला है, अता करने वाला है, बख्शने वाला है दो जहान का, जिसकी जानिब से हम आए हैं और जिसकी जानिब पलट कर वापस जाना है। वही परवरदिगार है जो हर भूखे की भूख मिटा रहा है, हर प्यासे की प्यास बुझा रहा है, हर बीमार को शिफा याब कर रहा है, दुखों और परेशानियों में घिरे हुए लोगों को दुखों और परेशानियों से बाहर निकाल रहा है। वही परवरदिगार है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जाने हैं, जो हर जीव नफ्स को उसके हिस्से का रिज़्क़ पहुंचा रहा है, जिसके बारे में कुरान पाक ऐलान कर रहा है अला कुल्लि शैइन कदीर है। वही परवरदिगार जिसने हम पे करम फरमाया, अल्लाह ने हमें कुरान पाक जैसी बेहतरीन हिदायत वाली किताब नाज़िल अता फरमाई। और परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में, व इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। अल्लाह ताला इब्राहीम को एक इम्तहान के बारे में अपने करीब कर रहा है। अज़ीज़ान, आप और मैं दुनिया में तशरीफ़ लाए। अभी मैंने कितनी सारी दुआएं की हैं क्योंकि मेरा ईमान है इस बात पर, नमाज में दुआ करना अच्छा है, बेहतरीन है, मगर मुझे मेरी नमाज में यकीन नहीं है। कहीं रियाकारी कब आ जाए, कहीं मोहब्बत कम हो, कहीं मारिफत ना हो, एक सजदे में या एक रुकू में या एक तकबीर में अगर मारिफत नहीं है, यकीन कामिल मुझे इतना नमाज पे नहीं है, इतना रोज़े पे नहीं है, इतना अपने हज पे नहीं है, इतना अपने ज़कात पे नहीं है, इतना अपने जहाद पे नहीं है, इतना अमल बिल मारूफ पे भी नहीं है, इतना मुझे नहीं है मुनकर पर भी यकीन नहीं है, न तवल्ला न तबर्रा। मुझे बेहतरीन जो यकीन है, मुझ समेत हम सबको जो यकीन है वो फर्श अज़ा, हाँ, जो एक आंसू हम एक मक्खी के पर के बराबर अपनी आँख से निकालते हैं, वो आंसू कबूलियत का यकीन कामिल है कि ज़हरा अपने रुमाल में हमारा आंसू सम्मिलित कर। तो हमारी इबादतें, हम जो कुछ करते हैं, हम मुझसे मेरा ईमान है इस बात पर कि मैं फर्श अज़ा पर बहुत दुआएं मांगती हूँ। एक एक लम्हा दुआ की कबूलियत का है, एक एक सांस। आप यहाँ पर आकर बैठ गए, आप सांस ले रहे हैं, इबादत है। आप बात कर रहे हैं, इबादत है। आप पानी एक घूंट पी रहे हैं, इबादत है। आप पानी लाकर पिला रहे हैं, इबादत है। फर्श अज़ा। अज़ीज़ान, कितनी दुआएं की हमने, बहुत सारी दुआएं। हाँ, 10 मिनट लोग कहते हैं निदा इतनी दुआ कर भूल होती है। दुआएं क्यों मांगी? इसलिए कि इतनी मुश्किलात। एक दिन गुजरता है, यहाँ मेरी माएँ, बच्चियाँ तो अभी छोटी हैं, मौला तमाम बच्चियों के नसीब बेहतरीन अता फरमाए। माएँ ज़रूर आमीन बुलंद आवाज़ से कहेंगी, मौला आप तमाम की बेटियों के नसीब बेहतरीन अता फरमाए। तो मेरी माँ मेरी बात को यकीन है कामिल हिसाब से हिलाएंगी, मुझे बताएंगी कि हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू। हाँ, हमारा एक दुख ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया। एक परेशानी ख़त्म नहीं, दूसरी आ गई। एक आफत अभी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ गई। अज़ीज़ान, इम्तहान दर इम्तहान ज़िंदगी है, यह इम्तहानों का बाजार। कितने इम्तहान, इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ़ें। अज़ीज़ान, हम पैदा होते हैं उस वक्त से मुश्किलात शुरू हुई। आप 5 साल के हुए, आपके उस वक्त इम्तहान, आपसे सवाल जवाब, आपके मसाइब, आपकी तकलीफ़ें। आप 10 साल के हुए, आपके इम्तहानात चल रहे हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज के साथ साथ घर के भी हैं, अम्मा डांट रहे हैं, बहन भाई समझा रहे हैं, आपका मुअल्लिम आपको पढ़ा रहा है, आपका उस्ताद, आपका टीचर। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन टू मच वे दैट यू आर गेटिंग वेरी अपसेट। टफ लाइफ इज गोइंग वेरी टफ लाइफ। हाउ डू यू फील? या अल्लाह, पैदा हुए इम्तहान, बचपन में इम्तहान, जवानी आ गई, 15 साल 18 सालों का लड़कपन, इम्तहान दर इम्तहान। कभी इम्तहान खत्म नहीं, आपका इम्तहान आखिरी पेपर होता है, सुकून। हाँ, आखिरी पेपर आपने लिख कर पेन रखा, टीचर को पेपर पकड़ाया, जान छुटिया, हाँ आज घर जाकर सुकून से सोऊंगी। मगर कितना सुकून है जब तक अगली क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती। हाँ, अगले साल फिर आपका इम्तहान, इम्तहान दर इम्तहान। फिर आपने जॉब स्टार्ट कर दी, फिर इम्तहान। रोज़ आपका बॉस, आपका जो मैनेजर है, रोज़ाना आपके हाथ में एक नया पेपर देता है, आज का आपका टास्क है दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो एंड फुलफिल इट कंप्लीटली 100%। यू हैव टू गिव योर 100% ईच एंड एवरी डे दैट वी आर डूइंग टफ वर्क। हम रोज़ जंग लड़ रहे हैं। हाँ, अपने शौहर, अपने बेटों से पूछे कि कितनी पॉलिटिक्स है ऑफिस में। एक इम्तहान है, जवान हो गए, इम्तहान लड़ रहे हैं, तकलीफें कभी कम नहीं होती। फिर बूढ़े और जवान होने के बाद
آپ کی شادیاں ہو گئی, آپ کو لگا آپ کی بیوی آ گئی, آپ کا شوہر آ گیا, اب آپ سکون میں نہ, ایک اور امتحان آ گیا, ایک اور پریشانی آ گئی, بیوی آئی تو پریشانی, ہاں, اور اگر نہیں آ گیا تو آپ کہتے ہو اللہ سے اچھا تو شادی سے پہلے تھی, اب بھی شوہر کے لیے یہ کام کرو وہ کام کرو, ایسے اتنے مسئلے. پھر آپ نے کہا نہیں بچے چھوٹے ابھی تو ری رات سونے نہیں دیتے, ابھی یہ مشکل وقت ہے, نہیں ایک وقت آئے گا میں سکون میں, جہاں بچیاں جوان ہو گئی, آپ کو لگا ہوا آپ کو کہ ہاں میری بیٹیاں جوان, گھر کے کام بھی سب ہو جائے گا, میں سکون سے مجلسوں میں جاؤں, سب کام کروں, خاندان میں جاؤں. اب آپ کے امتحان کرو گے نا, بچوں کی شادیاں کرنی ہے, پھر ایک مسئلہ, آپ کے امتحان ختم ہوئے, بچوں کی شادیاں ہو گئی, بیٹوں کی شادیاں ہو گئی, آپ نے کہا آپ جان چھٹ گئی نہ, پھر امتحان, آپ نانی دادی بن گئے, پھر آپ نے ان کو پالنا ہے, آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے, امتحان در امتحان, آپ بوڑھے ہو گئے. پھر ہم کیا کہتے ہیں بوڑھے ہو کر, اب تو قبر میں جا کر ہی سکون ملے گا, آرام سے بیٹھیں گے, دنیا میں تو سکون نہیں ہے بہن, ہم نے تو جب مر جانا ہے پھر سکون مل جانا ہے. اب اتنے امتحان در امتحان, ایک وقت آ گیا, آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, آپ کے سامنے ملک الموت آ گیا, اس نے آپ سے کہا چلو چلنے کی تیاری ہے, آپ کے پاؤں کے ناخن سے آپ کی روح قبض ہونے شروع ہوئی, اور آپ کے سر سے جب روح قبض ہو گئی, نکل گئی, آپ نے کہا میں سکون میں آ گیا, آپ کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اب آپ کو دفن کرنے لے کر جایا جا رہا ہے, آپ کے لیے 2 گز زمین کھودی گئی, آپ کو لٹا دیا گیا, آپ کی تلقین پڑی گئی, اب تم کہاں جا رہے ہو. ہم کیا کہتے ہیں قبر کو, آخری آرام گاہ, کیا جملہ کہا جاتا ہے, یہ فلاں بندے کی آخری آرام گاہ ہے, یہ آخری جگہ ہے. آپ کو لگا اب آپ آخری آرام گاہ میں آ گئے, آپ سکون میں آ گئے, ابھی آپ کی قبر کا تعویذ بند ہوا ہے, ابھی آپ نے آ کے ابھی آپ کی باطنی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا اب مجھے سکون آ گیا یہاں پہ, نہ ابھی بھی سکون نہیں آیا. پھر 2 فرشتے حاضر ہو گئے, اب آپ سے پوچھ رہے بتا تیرا اللہ کون ہے, کس کی نمازیں پڑھتا تھا, کس کا, کون تیرا نبی ہے, کون تیرا امام ہے. آپ نے کہا لو بھائی دنیا میں بھی امتحان, یہاں پہ بھی امتحان, سوال اور جواب, ایک کے بعد ایک سوال. اب کب ختم ہوں گے سوال, ایک وقت آیا کہ آپ کے سارے سوال ختم ہوئے, آپ کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا, آپ کو عالم برزخ میں بھیجا گیا, آپ نے کہا بھائی اب تک امتحان ختم ہو گئے, سکون کامل میں آ گیا, سکون میں آ گیا, میں نے سب کام کر دیے, نمازیں پڑھی, روزے, حج, زکات سب کر لیا, اب میں جا رہا ہوں جنت کی جانب. اب آپ جنت کے سامنے پہنچے, دروازے سے دور ہیں, ایک مرتبہ صدائے ہاتھ پہ غیبی بلند ہوگی, وقفوہم, ان کو روکو, وقفوہم, ان کو روکو, ان ولایت علی بن ابی طالب انہم مسلمون, ابھی ان سے ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال کرنا باقی ہے. ہاں, جاتا وہ انسان جو ہاتھ ہلا ہلا کر جا رہا ہوگا, کیا تو میرا کوئی امتحان نہیں, پلٹ کر رہے گا پروردگارہ یہ کیا, کہا نہیں جو تیرے روزے ہیں, تیری نمازیں ہیں, تیرے حج ہیں, تیرے زکات, تیرے خون سے رجعات, سب ایک طرف ہے. پہلے بتا کہ تو علی کو مانتا ہے نہیں مانتا, مانتا ہے تو کتنا مانتا ہے, کیسے مانتا ہے, کب کب مانتا ہے, کس کس جگہ مانتا ہے, یہاں اپنے آپ بتانا ہے کہ کیا ہے میرے اندر, کتنا ہے علی. اور جس حال میں حیدر کرار آ جائے, فاتح خیبر آ جائے, شافی محشر آ جائے, سجدوں کی زینت آ جائے, عبادتوں کا خدا آ جائے, عین اللہ آ جائے, ید اللہ آ جائے, مدد اللہ آ جائے, حجاب اللہ آ جائے, جب علی آ جائے سینے میں تو علی بولتا ہے. کیا کہا, قال علی قال رسول خدا خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں جس ہاتھ سے مانگتے ہو یا علی حیدر کرار شاہد کرے. ہاں, احسان فراموش نہیں ہے, اللہ نے انسان کی گھٹی میں ڈالا ہے, اگر احسان مانتے ہو تو ضرور ہاتھ اٹھاؤ. رحمت للعالمین کہتے ہیں, میں قربان جاؤں میرے نبی پہ, کیسی شان علی کی بیان کی ہے, قدم قدم پہ کیا فرمایا کہ اے علی, یا علی, اگر کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے, اتنے روزے رکھے, اتنا
اتنا عبادت الہیہ کرے اور ایسے قیام کرے جیسے نوح نے قیام کیا. ہاں نوح کا نام کیوں نوح ہے؟ رونے والا. اتنا گریا کرتے پروردگار عالم کے سامنے. ایک کوئی شخص یا علی اگر کوئی شخص اتنی عبادتیں کرے, اتنے روزے رکھے, اتنی عبادات کرے, نمازیں پڑھے اور نوح کی طرح قیام کرے اور اس کے بعد اتنا سونا انفاق کرے جبل احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے, سب کچھ قربان کر دے, صدقہ جاریہ کر دے, پھر بھی اس کے بعد بھی 10,000 سال تک بھی اگر پیدل چل کے وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا رہے, 10,000 سال تک صفا مروہ کے درمیان دوڑے لگانے کے بعد وہ مر جائے, دنیا سے چلا جائے, تب تک بھی وہ جنت کی بو تک حاصل نہیں کر سکتا. اگر بغض علی دل میں ہو, بغض علی دل میں ہو, وہ جنت کے اندر جا نہیں سکتا. جنت دور ہے. یہ بھی بتاتی جاؤں بریکٹ میں, بو کیا ہوتی ہے؟ اسمیل, خوشبو. ہاں خوشبو ہو یا بدبو ہو, اسمیل ہو, بو ہو. کہیں بریانی پک رہی ہوتی ہے تو ہم باہر سے گزرتے ہیں, گھر سے اتنا دور ہوتے ہیں, ہمیں خوشبو ہے بریانی پک رہی ہے. ہاں میرے مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا, میں قربان اس نبی پہ جسے کیا فرمایا, جنت تو دور ہے, اس کی بو تک حاصل نہیں کر سکتا جس کے دل میں بغض علی موجود ہو. چاہے کتنی نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, چاہے ماتھا سجا لے, چاہے ٹکنے سجا لے, چاہے پاؤں سجا لے, اگر دل میں بغض علی ہے, جتنا سونا انفاق کرے بغض علی ہے نہیں جا سکتا. کتنے عمرے کرے, کتنے حج کرے, کتنی دورے لگائے, نہیں جا سکتا اگر دل میں بغض علی ہے. کون سا علی ہے عزیزان؟ یہ لوگ کہتے ہیں تم یا علی مدد نہ کہو. ہاں کتنا ٹرینڈ ہے, آپ سب سوشل میڈیا آپ سب کے ساتھ ہے, سامنے یا علی مدد نہ کہو بغض ہے. اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ نواز میں فرماتا ہے آپ کے شہرک سے قریب ہے. عزیزان پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی. ہاں کیوں؟ آپ کبھی لے ہی نہیں سکتے, آپ کبھی پا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی, تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی. پایا درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی, تو ہے کم ظرف تیرے دل میں سمایا نہ علی. اسے پالان کا ممبر بھی بنایا لیکن, اسے پالان کا ممبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے بھی تجھے نظر آیا نہ علی. ہاں یہ وہ حیدر کرار ہے. کبھی سوچا ہے جب وہ مشکل آتی ہے؟ امام شافعی بہترین امام گزرے ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے. ہاں میں کہوں سب سے زیادہ اہل سنت والے ہم. سنی کون؟ سنت پر عمل کرنے والا. ہاں ہم سے بڑھ کر اہل سنت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے تو علی والا ایک ٹیگ لگایا ہے ہمارے پر, اور الحمدللہ ہم علی والے ہیں. ہم بہترین علی والے ہیں, جو دل سے مانے اور ظاہر دکھائے وہی علی والا ہے. عزیزان امام شافعی سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا مجھے بتائیے 10 کون سے بہترین صحابی ہیں جو رسول خدا کے بہت کلوز رہے ہیں. دا پرفیکٹ اینڈ بیسٹ صحابہ آف رسول خدا, دا نیم, tell me the first one, the second one, the third one, fourth one, name wise and rank wise. تو he told him, انہوں نے بتایا کہ پہلا صحابی یہ ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے, تیسرے نمبر پہ یہ ہے. رینک بتا رہے کون کس سے زیادہ ہے. ہاں رینک بتایا انہوں نے, چوتھے نمبر پہ یہ ہے, چھٹے نمبر پہ یہ, 8ویں نمبر پہ یہ ہے, 12ویں 10ویں نمبر پہ یہ ہے. جیسے 10واں صحابی آیا, ایک مرتبہ جو بیٹا سامنے بیٹھا تھا, بابا میں نے آپ سے صحابیوں کا جب نام پوچھا تو آپ نے مجھے ایک بار بھی کہیں علی کا نام نہ بتایا. تو کیا فرمایا میرے مولا نے امام شافعی, جو علی والا بن جاتا ہے شیعہ ہو یا نہ ہو, وہ آ جاتا ہے ان کے دائرے میں, وہ علی مان جاتا ہے. کہتا ہے تو نے مجھ سے, فرمایا تو نے مجھ سے صحابیوں کا پوچھا تھا, نفس رسول کا نہیں پوچھا. تو کہتا نفس رسول علی وہ ہے جو نفس رسول ہے, جو بھائی ہے, جو جان ہے, جو دل سے قریب ہے, جسے کہیں مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں, اسے کہتے ہیں علی. ہاں کون سا علی؟ عزیزان ہوتا کیا ہے, ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلیں ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں. کبھی میں چھوٹی سی مثال دوں, دودھ ابل کے گر رہا تھا, ہم کیا کہتے ہیں یا علی مدد. ہاں ہم اگر چلتے چلتے ٹھوکر لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد. ہم اگر بیٹھے ہوئے اٹھا نہیں جا رہا ہماری ماؤں سے
से जो भी चेयर पे बैठे मौला सबको सलामत रखे, मौला शिफाए कामला अता फरमाए, इनके बच्चों पे इनका साया कायम दायम रखे। जमीन पे बैठा नहीं जाता और कभी बैठ जाए तो उठकर खड़े नहीं हो जाते। या अली मदद, हाँ इतना यकीन है कि या अली मदद कहेंगे तो साथ चलती हुई माँ जिसे 70 अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत से शबाहत दी है, माँ की मोहब्बत को, कितनी बेहतरीन हस्ती है माँ, और माँ के कदमों तक पहले आ जाता है। यकीन आप नहीं कहते या माँ मेरी मदद कर, ए माँ मुझे बचा ले, ए मेरी माँ मुझे ये हो रहा है ना, आप कहते या अली मदद। यकीन है एक अली नहीं, 5वां अली नहीं, 8वां अली नहीं, 12वां अली भी उसी तरह से आप या अली मदद। एक मर्तबा शिवाला से मेरा इमाम ज़माना ज़मीन पर आकर पर्दा फाड़ कर ए मोमिन बंदे तूने कहा या अली मदद, देख मैं तेरी मदद के लिए। हाँ अगर कभी सवाल करे अपने आप से क्या होता अगर हैदर करार ना होते, कभी सोचा है क्या होता अगर हैदर करार ना होता। हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियाँ, या मौला बड़ा घर नहीं है, हमें बड़ा घर चाहिए, या मौला बेटियों के नसीब नहीं खुल रहे, बेटियों के नसीब बेहतरीन फरमा दीजिए, या मौला नमाज में दिल नहीं लगता, मारिफत नहीं आ रही, मेरा जहन भटकता है, मेरी मदद फरमाइए हर चीज़ के लिए या अली मदद, हर चीज़ के लिए या अली मदद। कभी सोचा क्या होता अगर हैदर करार ना होते, फिर आलम अरवाह हमें इकरार ना होते। हाँ हम सब की रूहों ने आदम से लेकर खातिम और खातिम से इमाम ज़माना तक के हर ज़ीरू नफ्स ने कसम खाई है हाथ बुलंद करके कि अशहदु अल्ला अलीम वलीउल्लाह, हम करते हैं, गवाही देते हैं। एक मर्तबा कभी सोचे ना क्या होता अगर हैदर करार ना होते, फिर आलम अरवाह हमें इकरार ना होते, पढ़ते अगर ननादे अली हजरत नूबी, या मैं कहते तुम या अली मदद न कहो। कभी सोचो किस किस ने कहा है, पढ़ते अगर ननादे अली हजरत नूबी, इस बार ही रहते कभी उस बार, इस बार ही रहते कभी उस बार ना होते, और चौदह की ज़ियारत का अगर शौक ना होता, मिंबर पर कह रही हूँ हर शिया की जानिब से, चौदह की ज़ियारत का अगर शौक ना होता, हम खुद में जाने को भी तैयार। हाँ और ये कहते तुम या अली मदद न कहो, खुदा की कसम खाकर कहूँ, मौला के ताबूत के सामने, आलम गाजी के सामने खड़े होकर बैठकर कसम खाकर कहूँ, मिलता तुम्हें भी हैदर की विलायत का खजाना, मिलता तुझे भी हैदर की विलायत का खजाना, कर माँ की तरफ से जो गुनहगार ना होते। हर कोई या अली कह नहीं सकता, हर कोई हैदर करार के करीब हो नहीं सकता। क्यों? खुदा गवाह है, तुमने तो फकत इसलिए माना है अली को, तुमने तो फकत इसलिए माना है अली को, हैदर के बिना यार कभी चाह, हैदर के बिना यार कभी चाह। अज़ीज़ान खुदा गवाह है, सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुमने तो फकत इसलिए माना है अली को, हैदर के बिना यार कभी चार न होते। और आज जब घर जाए अगर मगरिबैन पढ़ चुके हैं, जब फजर में उठे और अगर फजर मिस हो जाए, इन दैट के अल्लाह ना करे कैसा हो, और कल जब आप अरबईन में हो, आप कल चैनुम मेरे मौला का मनाए, जब पहला सजदा रख करे ना, सजदे में ये सर रख के कभी पूछ खुदा से, सजदे में ये सर रख के कभी पूछ खुदा से, कभी पूछ खुदा से, कभी पूछ खुदा से, क्या होता अगर हैदर करार, क्या होता। जियो मौला सलामत रखे, मेरी बहन का घर आबाद रखे, माँ बाप का सलामत रखे, हाथ बुलंद करके मेरे मौला का नारा बुलंद आवाज, हैदरी या अली या अली या अली या अली या अली या अली मदद हक है। बुलंद से बुलंद तरीन सलावत, दिल बोलता नहीं अच्छा, नारा लगाना हर एक को ज़ेब नहीं देता। कितने लोग आए हैं? हाँ कम से कम 150 होते हैं हर मजलिस में, मुझे बता नारे कितने लगाते हैं? क्या सबका दिल नहीं चाहता? हर कोई लगा नहीं सकता। अली जिसको चुन लेना, तेरा ईमान कामिल है, तेरी चाहत कामिल है, तेरा ईमान कामिल है, तेरा चेहरे पे मुस्कुराहट कामिल है, तेरे दिल में नूर जगमगा रहा है,
भी बुलंद जाता है ना, नाराए हैदरी, हाथ ऐसे कांप रहा होता है, ऐसा लगता है मेरे मौला आकर सामने खड़ा हो गया। हाथ में जिस्म में खून की रवानी इतनी तेज हो जाती है, कभी महसूस करो दिल कितनी तेजी से धड़कता है, कैसा दिल तेजी से धड़कता है। और अली वाले को चेहरे जगमगा रहे होते, मुस्कुराहट के साथ। कौन है अली? खुदा की कसम खाकर कहूँ ये जुमले मेरे पसंदीदा जुमले हैं, जो मैं पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। कौन है अली? आप और मैं जिसको अली कहते हैं, अली वाला मानते हैं। कौन है हैदर? कौन फातह खैबर? कौन शाफी महशर? ये वो अली नहीं जिसे दुनिया ने समझा है। अली कब है? अली कैसे है? अली कहाँ है? अली किस तरह है? अली को कोई समझ नहीं सकता, और हमसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है जो कह रहा है मेरा नबी या अली तुझे या तो मैंने जाना है या मेरे अल्लाह ने जाना है, और मुझे या तो तूने समझा है या मेरे अल्लाह ने समझा है। हम मान ही नहीं सकते, सवाल करते हैं कैसे मुमकिन है, हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट 600 पीपल्स आर कॉलिंग दैट या अली मौला मदद फरमाइए। तो एवरीवेयर अली इज देयर एंड डूइंग हेल्पिंग। नो, हाउ कुड बी पॉसिबल? डोंट से या अली मदद, या अली मदद मत कहो, या अली मदद मत कहो। कैसे मुमकिन है कि एक बंदा है और हर जगह जा जा के मदद करे? समझ नहीं आ सकता, मान ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। क्यों? अली कौन है? अगर अली से लोग इंसान अली वैसे का मेरा दिल बन गया आपके चेहरे। मुझे पीछे आंटी बैठी, बहन बैठी मेरी, यहाँ बच्चियाँ जो बैठी है ना, चेहरे मैं गुनहगार बनती हूँ, कसम खा कर कहूँ ना, मैं नहीं जानती सब कौन कौन है, पहली बार आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, मगर अली वाला चेहरे से बोल रहा है, चेहरा बोलता है, सब नहीं। मैं गुनहगार बनती हूँ जब मैं पहचान रही हूँ कौन मुस्कुरा रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन जगमगा रहा है। जब मैं पहचान सकती हूँ तो फिर फातह बोल ऐसे कि मेरा खालिक देख ले, मेरा मौला देख ले। कौन? अगर अली सुरा इंसान अली, बुरहान अली, जान अली, सबसे सकलैन की शान अली, हर वक्त की बात का राज अली, कैसे खत्म करार अली, अली का शागार अली, शाहजाद रसूल जमाल अली, हरमात अली, वाहिद की वाजिद अली, और उनके से वाहिद अली, बेबदर अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से साकी भी बेबदर अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी बेबदर अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी सच्चा काफी भी अली, और से है शाफी भी अली, मेरा ताज से काबा अली, अली मेरा ताज से किबला अली, अली पूछो क्या है अली, लाला की बात फिजा अली, अली के शान भी अली, अमीन से मन को तुम्हारा भी अली, अली भी अली, आवाज चला अली, चला अली 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 अली, ईमान अली, इकार अली, सुल्तान अली मेरी जान, ईमान अली, इकार अली, सुल्तान अली मेरी जान, ईमान अली, इकार अली, सुल्तान अली मेरी जान, अली के कदमों में दारैन अली के कदमों में, शबीर अली के कदमों में, इस्मत अली के कदमों में, रिफाती अली के कदमों में, शौकत अली के कदमों में, है तहर में नूर हयात अली, परवाने पुल सिरात अली, कलियों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, शादी की चमक में अली, फूलों के शहर में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्तान की ईद अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्तान की ईद अली, ताक़ों में प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, यारों में अली, यारों में अली, चारों में अली, हर मोमिन के यारों में अली, यारों में अली, चारों में अली, हसन का बाबा अली अली, काबे का गौहर अली अली, है काबे का अली अली, है मक्का अली अली, है के सलात अली, बादल के बरसात अली, है के सलात अली, बादल के बरसात अली, कौन अली? वो मलाइकुल, वो कब्दुल रसूल, वो यासीन, वो ताहा, वो मुहम्मद, वो यासीन, वो नबी, वो शाफर, वो शाफर, वो शाफर, किसी का पहला अदद उठाए हाथ में दिखाया, मन को तमाला ये बोलना
ऐसे बोलते हैं अली वाले खुदा गवाह है। जब नारा हैदर लगता है ना, कौन कौन जवाब देता है? आपका और मेरा ईमान बताता है कि यहाँ ज़हरा भी मौजूद है। मेरे इमाम आपके सामने तिलावत फरमाइए रवायत, ज़हरा भी मौजूद है। जब नारा हैदर लगाते हैं क्या कहती है ज़हरा? मेरे शौहर का नारा है। अब्बास क्या कहते हैं? मेरे बाबा का नारा है। हसन कहते हैं मेरे बाबा का नारा है। हुसैन कहते हैं हमारे मौला का नारा है। मोहम्मद कहते हैं मेरे अली का नारा है। का नारा है। अशफाल्लाह कहते हैं हमारे मौला का नारा है। आदम कहते हैं मेरे मुश्किल कुशा का नारा है। ईसा कहते हैं मेरे मुश्किल कुशा का नारा है। नूह कहते हैं मेरे मुश्किल कुशा का नारा है। याकूब कहते हैं मेरे मुश्किल कुशा का नारा है। इस्माइल कहते हैं मेरे मुश्किल कुशा का नारा है। 1,24,000 पैगंबर कहते हैं हमारे मुश्किल कुशा का नारा है। और फकत इतना ही नहीं, परवरदिगार फरमाता है, लोग कहते हैं मैं कहूँ अली का काबे में पैदा हो जाना ही सबसे, कुछ नहीं मानो, कुछ ना मानो, सिर्फ इतना ही काफी है अली की फजीलत के लिए कि काबे में पैदा हुए। लोगों ने कहा हर एक के बस में नहीं है कि कहाँ कौन कहाँ कैसे कैसे पैदा हो जाए, काबे में पैदा हो गए तो ये कोई उनकी फजीलत तो नहीं है, अली की फजीलत तो नहीं है कि कहाँ पैदा होना है और कहाँ पैदा नहीं होना है। तो मैं कहूँ ठीक है अली की फजीलत नहीं है, तो फिर जो लिख रहा है ना, क्या लिखता है? अली मेरी ज़मीन तेरी, अली मेरा आसमान तेरा, अली मेरी हवा तेरी, अली मेरी हवा तेरी, मेरा पानी तेरा, अली मेरा फर्श तेरा, अली मेरा फर्श तेरा, ये ज़मीन मेरी तेरी, ये आसमान मेरा तेरा, ये हवा मेरी तेरी, ये मलाइका मेरे तेरे, ये फरिश्ते मेरे तेरे, ये सूरज मेरा तेरा, ये चाँद मैंने तेरे नाम कर दिया, चाँद मैंने तेरे नाम कर दिया, मोहम्मद तेरे नाम कर दिया, सारा तेरे नाम कर दी, अब्बास तेरे नाम कर दिया, हसन तेरे नाम कर दिए, सब कुछ तेरे नाम कर दिया। वाला भी लिख कर कलम को तोड़ता है, क्या कहते हैं? अली मैं खुद भी तेरा, मेरा सब कुछ भी तेरा। तो अली वाले ऐसे होते हैं जो लिख देना अली वाला है, खुदा गवाह है। जब हम अली वाले हैं उसकी कुशाई मांगते हैं। खुदा की कसम एक जुमला बयान करती चली जाऊं, तुमने तो दुनिया में हमारा यहाँ पर आना और आकर पुकारना मेरे मौला को हमारी ज़िंदगी उनका हासिल है, कोई पुकार नहीं सकता। एक मरतबा मेरे मौला के दर पे अली मस्जिद नबी के बाहर बैठे हुए थे और मस्जिद में मेरे नबी मौजूद थे। एक मरतबा सहाबी आए कुछ पर आकर कहा हमें अंदर जाना है। अंदर तड़तड़ाते हुए सीना चौड़ा किया, पहुँचे अंदर। अली ने एक मरतबा रोक दिया, रुक जाइए, रुक जाइए। क्यों भाई, हमें क्यों रोका है? अपने नबी से मिलने जा रहे हैं हम। मौला ने क्या फरमाया? रुक जाओ, अभी ना जाओ, नबी इस वक्त बिजी है, मसरूफ है। कहा कहाँ बिजी है, कितनी मसरूफियत है, थोड़ी देर रुक जाइए। कुछ देर गुजरी, मिसाल 10-15 मिनट गुजरे, फिर कहा हम अंदर जा रहे हैं, बस अब फ्री हो गए होंगे, फारिग हो गए होंगे। फिर मेरे मौला ने कहा रुक जाओ, अभी नहीं जाओ, नबी मसरूफ है, बिजी है। फिर एक मरतबा थोड़ी देर रुक गए, 10-15 मिनट गुजरे, फिर कहा बस अब बहुत हो गया, हम अली से, हम मोहम्मद से मिलने जा रहे हैं, उसी मोहम्मद के पास है, हम जाके अपनी नबी। मेरे मौला ने पूछा क्या काम है, क्यों जाना चाहते हो? एक मरतबा रुक कर कहा हम तुम्हें नहीं बताएंगे, हम मोहम्मद को बताएंगे, जो बताना है उन्हीं को बताएंगे। अब एक मरतबा अली ने रोका, नहीं जाओ, मैं रोक रहा हूँ। कहा हम जाएंगे। कहा ऐसी कौन सी बिजी है, ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो इस वक्त मोहम्मद मसरूफ है, फ्री नहीं हुए? कहा अभी इस लम्हे वहाँ पे मलाइका की हाजिरी हो रही है, नज़ूल कर रहे हैं, एक जा रहा है, एक जा रहा है। कहा अली तुझे कैसे पता? फरिश्ते आ रहे हैं, अगर आप भी रहे होंगे तो चले गए होंगे। एक मरतबा मेरे नबी के, मेरे अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मुस्कुरा कर फरमाया मैं तुझे बताऊं कितने फरिश्ते आए हैं, कितनी बार आए हैं, किस मकसद से आए हैं, मैं सब जानता हूँ। सवाल किया क्यों, तू कैसे जानता है? एक मरतबा जवाब दिया तूने सुना नहीं, अना मदीनतुल मुबशशरतुहा, शहर है, शहर में आने से पहले दरवाजे पर आते हैं, मुझे सलाम करते हैं, सलाम करके अंदर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मुझे सलाम करते हैं, फिर बाहर जाते हैं। जो अंदर जाता है जिसे मोहम्मद से मिलना है 2 बार मुझसे मिलेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद
یہ دنیا ہے، ہم مانگنے آئے ہیں، ہم عبادت کرنے آئے ہیں. اور عبادت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ میں نے جن انس کو خلق کیا تو ما خلقت الجن والانس، اس لیے عبادت کے لیے. کون سی عبادت؟ کیا نماز؟ کیسے نماز پڑھنے آئے ہیں؟ تو وہ 5 times in a day that Parvardigar is calling to us. No, نماز واجب ہے، عبادت ہے. مگر صرف نماز میں آئے، صرف روزے 30 روزے ان ہول ایئر، پورے سال میں 30 روزے آپ کو رکھنے ہیں. کیا صرف روزے رکھنے ہیں؟ نہیں. کیا صرف حج کرنے آئے؟ نہیں. کیا صرف زکوٰۃ دینے آئے؟ نہیں. کیا ہم سارے یہ کام؟ نہ. سوال کیا کیا میرے نبی نے. ایک مرتبہ کتنی خوبصورت حدیث ہے میرے مولا کی. نبی فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو. اچھا مجلس یہ نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں ہم سے پوچھا کہاں ویئر آر یو گوئنگ؟ we say I'm going to the مجلس پہ جا رہی ہوں. کیا مجلس صرف یہ ہے جو آپ فرشتہ پر آ کر بیٹھے؟ نہ. مجلس 2 لوگوں کے بیٹھنے کو بھی کہتے ہیں. میں قربان کیوں نہ جاؤں اس نبی کے. محمد کو گوارا نہیں ہے. وہ محمد بول رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد خود سے کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں تو محمد کہتے ہیں. محمد کو بولو بیٹھ جائے، محمد بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اٹھ جاؤ، محمد اٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سو جاؤ، محمد سو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کو سلا دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد خود سے کچھ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہی محمد کہے، وہی علی کہے، وہی محمد کہے کہ اپنے مجالس کو ذکر علی سے منور کرو. کون سی وجہ سے؟ یعنی محمد کو گوارا نہیں ہے کہ 2 لوگ بیٹھ کر بات کریں تو علی کے سوا کوئی اور بات کریں. 2 لوگ بھی اگر قریب ہو کر بیٹھے نا تو صرف علی علی کریں. یہ محمد چاہتے ہیں. کون محمد؟ جو آپ کا میرا نبی. کون محمد؟ جس نبی نے دکھا دیا، جس محمد نے بتایا ایک جنت ہے. ایک جنت، there is one جنت and we are going to the Jannah and those are, he says okay, ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے. نبی نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے کہا فرشتے ہیں. نبی نے کہا ملائکہ ہیں، ہم نے کہا ملائکہ ہیں. نبی نے کہا مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ہم نے کہا آئے. کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کیا آپ نے موسیٰ کو دیکھا؟ کیا آپ نے نوح کو دیکھا؟ کیا آپ نے جنت کو دیکھا؟ کیا آپ نے عرش معلیٰ کو دیکھا؟ کیا آپ نے زمین کی ذات ہے اندر جا کر دیکھا؟ کیا کہنا محمد نے بتایا آپ کو کہاں کیا ہے، کب ہے، کیسے ہے. آپ مان گئے. ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم مان گئے. سب کچھ مان گئے. تیرے سوا کچھ بھی سوا نہیں دیکھا. کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. تیری زبان کے سچ پہ صدا کیے سجدے. تیری زبان کے سچ پہ صدا کیے سجدے. تیری قسم ہے کہ ابھی تک خدا نہیں دیکھا. تو وہ محمد، اس محمد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. محمد نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا جنت ہے. دوزخ ہے، ہم نے کہا دوزخ ہے. اس نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے کہا فرشتے ہیں. ملائکہ ہیں، ہم نے کہا ملائکہ ہیں. اس نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے. اس نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں، ہم نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں. اس نے کہا 30 روزے واجب ہیں رکھنے ہیں، ہم نے کہا 30 روزے واجب ہیں. اس نے کہا ایک شیطان ہے، ابلیس اس کا نام ہے، اس کے سارے بچے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. ہم مان گئے مگر حد ہے تو اس مسلمان پر. اور میں کیا کہوں، وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو نہیں دیکھا وہ مان گیا، جسے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا اس محمد کو ہاتھ لے سکتے ہیں. نبی کی صدائیں علی علی کی پکار، بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے. مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا. میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے سوا. بلند ترین صلوات انشاءاللہ تعالیٰ پھر کہیں آپ سے ملاقات ہوگی تو اسے کنٹینیو کریں گے کہ میرے نبی کی نماز، میرے علی کی نماز کیا ہے، میرے علی کا تقویٰ کیا ہے. میرے علی عزیزان، علی والا کہلانا آسان ہے، علی والا بن جانا
आसान नहीं है। हाँ, हम चादरें ओढ़ कर आते हैं सिर्फ फर्श अज़ा पे ना। क्या सिर्फ अली फर्श अज़ा पे है? नहीं। क्या ज़हरा सिर्फ फर्श अज़ा चार दीवारी में है? नहीं। क्या शादियों में नहीं है? क्या हमारे फंक्शंस में नहीं है? क्या हमारी नौजवान बच्चियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं वहाँ नहीं है? हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमारा पहनावा देखा करें। अली वाला बनना बहुत मुश्किल है, कहलाना ज़ाहिरन अली वाला बन जाए। देखिए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली देयर आर टू वेज टू बी अली वाला। दो तरीके हैं अली वाला बनने के, एक आपका ज़ाहिर है, एक आपका बातिन है। ज़ाहिर आपका, आप अली वाले हैं, जब नारा लगे आपका चेहरा मुस्कुराए, आपका पर्दा है, ज़ाहिर नज़र आ रहा है, आपका पर्दा पूरा है। बातनी क्या है? नमाज ऐसी हो जैसे अली ने पढ़ी है, तकवा ऐसा हो जैसे मेरे मौला का है, इबादत ऐसी हो एक दूसरे के साथ ऐसे हुस्न सलूक हो, हुकूक इलाहिया और हुकूक नास ऐसे हो जैसे अली के हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, ज़रूर आगे बढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान, जब फर्श अज़ा पर आते हैं ना, मैंने आपसे एक गुजारिश की कि जब दाखिल हुआ करें सलाम ज़रूर किया करें। कि जुमला जो मैंने पढ़ा था ये मेरा जुमला नहीं है, ना किसी ज़ाकिर का, ना आलिम का, मेरे मौला का जुमला। कि हमारी जद्दा सबसे पहले तशरीफ़ लाती है। मालूम नहीं है आप सलामती भेज रहे हैं, और वो आपका सलाम भेजना, सलामती भेजना और है, ज़हरा का सलामती भेजना आप पर और है। अज़ीज़ान, और आप सबको फर्श अज़ा पर उस तरह बैठने की तौफीक दे जैसी ज़हरा चाहती है। आज की शब है जिसे चहलू की शब कहते हैं। अज़ीज़ान, एक बीवी आपकी और मेरी तरह अपने घर से निकली फर्श अज़ा पर आने के लिए। जैसे ही फर्श अज़ा पे पहुंची, और चूँकि वो औरत शिया थी, मगर शादी अहले सुन्नत में हुई थी। मुहर्रम जब आए ना शादी के बाद पहली बार, जब घर से तैयार हुआ करे ना, चादर ओढ़ रही हुआ करे तो कहा करे मैं ज़ैनब की रिदा ओढ़ रही हूँ। जब नारैन पहना करे उन बीवियों के कदमों को याद करे, उनके पाँव को याद किया करे जिन्होंने पाप आया था, सफ़र किया। वो बीबी जब मुहर्रम है ना, अपने शौक से इजाज़त दी कि मुहर्रम में मैं घर में बैठ नहीं सकती, मैं मजलिसों में जाऊंगी। शौहर ने कहा तुम दिन में चाहे जो करो, मेरे काम सारे वक्त पे हो जाने चाहिए। मैं सुबह जाऊंगा, शाम में आऊँगा, तुम्हें दिन में जहाँ जाना है जाओ, इजाज़त है, मगर ये याद रखना मेरा घर डिस्टर्ब ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम माएँ भी अपने घरों को एहसन तरीके से चलाती हैं, फर्श अज़ा पर आती हैं मगर घर भी देख रही हैं। और मेरी माओं के तमाम बेहतरीन अमल को कबूल मकबूल अता फरमाए। वो बीवी कहती है ठीक है सारे काम करूँगी मगर फर्श अज़ा ज़रूर जाऊँगी। पहला मुहर्रम गुज़रा, दूसरा मुहर्रम गुज़रा, 4 मुहर्रम आई। एक मरतबा सुबह उसका शौहर कहता है कि आज रात में मेरे घर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पे, तो तुम खाना तैयार रखना, ये खाना पकाना है। लिस्ट बता दी उसने। तो वो बीवी हाथ उठाकर कहती है मुझे मुहर्रम के दिनों में तंग न करो, ये वो वक्त है कि मेरी बीवी का घर उजड़ने वाला है। मैं दिल में फर्श अज़ा पर जाती हूँ, मजलिसों में जाती हूँ, घर नहीं बैठ सकती। खुदारा अपने मेहमानों को सोयम के बाद बुला लेना, आज न बुलाओ। कहते मैंने दावत नहीं दी, मेहमानों ने दोस्तों ने खुद कहा कि आज रात का खाना हम तेरे घर तेरे साथ खाएंगे। किस्सा मुख्तसर मियां बीवी में थोड़ी सी तू में हुई, मगर शौहर ने कहा मुझे नहीं मालूम, हर हाल में खाना तैयार हो। वक्त जब शाम में मेरे दोस्त का खाना रेडी हो,
शौहर कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। अब वो औरत दुखी हो गई। अज़ीज़ा ने आपका और मेरे दिल का मामला भी है, हमारे साथ भी होता यही है, घर में बैठा नहीं जाता, जब फर्श अज़ब बिछ जाए ना कहीं हमें मालूम हो, हम जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए फर्श अज़ब पर आ जाते हैं अज़ादारों। बस उस बीवी ने जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश की, मगर काम ज़्यादा था, वक्त कम था। एक मरतबा जब मजलिस का वक्त हुआ ना, उसने कामों को अधूरा छोड़ दिया। कहती मैं पहले मजलिस से होकर आ जाती हूँ, वापस आकर यहाँ काम कर लूँगी। बस अपने घर से निकली, जल्दी जल्दी में घर को ताला लगाया, कुफ्र किया, घर से बाहर चली गई। जैसे फर्शेदा पर पहुंची, सलाम मरसिया हो रहा था। मरसिया के बाद जैसी मस्जिद शुरू हुई, मसाइब तक आई, उसने इतना गिरिया किया। मेरे मौला गाज़ी अब्बास रमज़ान के मसाइब थे, ज़हरा के लाडले बेटे के मसाइब थे। उस बेटे की जिस ज़हरा ने रात को दिन को जब नमाज पढ़ी, अब्बास को दुआ में मांगा, उसी अब्बास के मसाइब थे। बीबी रोने लगी, इतना रोई कि बेहोश हो गई। उसे अपनी होश न थी। एक मरतबा जैसे उसकी आँख खुली, अब दाएं और बाएं क्या देखा कि कोई मौजूद नहीं है, मजलिस खत्म हो गई है। फर्शदा उठ गया, तड़प कर खड़ी हुई, मुझे बहुत देर हो गई, मेरा शौहर घर आ गया होगा, मुझे घर जाना है। बस उठी, भागने लगी। एक मरतबा जल्दी से उठकर बाहर निकली, बाहर लोगों ने पुकारा, अपना तबरुक में हाथ लेके जो जल्दी से न्याज दिया। घर पहुंचे, जैसे घर के करीब आई, देखा ताला खुला हुआ है, ताला खुला हुआ है। जैसे ताला देखा, अपने आप पे सर पे हाथ मार के कहती है बीवी कितनी जल्दी थी मजलिस में जाने की, कि ताला तक न लगाया तूने। बस अंदर दाखिल हुई, दाखिल होकर क्या देखा, छोटा सा सहन है, सहन में एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची झाड़ू पकड़ कर खड़ी है। सहन का झाड़ू दे रही है। एक मरतबा करीब पहुंची, जाकर सवाल किया है बीबी मेरा दरवाजा खुला हुआ था, आप अंदर आ गई, मेरा शौहर आने वाला होगा, ए बच्ची तू चली जा। एक मरतबा बच्ची ने कोई जवाब ना दिया, हाथ उठाया, किचन की जानिब इशारा किया। वो बीबी इतनी जल्दी में थी, तेजी से किचन में जाकर क्या देखती है कि एक बीवी बैठी हुई है जमीन पर बैठकर चूल्हे पर कुछ पका रही है। वो बीबी कहती है मैंने सवाल किया है बीवी आप कौन हो, मेरा घर खुला था, आप अंदर आ गई। एक मरतबा सवाल किया, आप अंदर दाखिल हो गई, मेरे शौहर आने वाला है, गुजारा आप चली जाइए, मुझसे नहीं आ जाएगा। बीबी कहती है बोली मुझसे कुछ नहीं, बस हाथ का इशारा किया कमरे की जानिब। वो बीबी कहती है मेरे हाथ पे जल्दी में नहीं देखा था कि हाथों पर जख्मों के निशान, कलाइयां सूजी हुई है। एक मरतबा तड़प कर पलटी, अब जो कमरे में जाकर देखा, क्या देखा, एक बीबी का एक हाथ शकिस्ता पहलू पर है और एक हाथ से चादर सीधी कर रही है। बिस्तर की चादर करीब बीबी आप कौन, आप सब कौन है, मुझे कोई जवाब नहीं देता। गुजारा मुझे बताइए, मेरा शौहर आने वाला है, लड़ाई करेगा, मुझे बातें सुनाएगा, आप लोग अपने घर चली आई, तू इसके घर चली जा, तू इसकी मुश्किल हाल। हाँ दादा रो, यूं नहीं है, आप यहाँ आकर बैठ गए, समझते अपने मसले परेशानी बीवी के नाम कर दे। रिहाई का हुक्म आ गया, मेरी बीवियां जो महीनों से कैद में, साल गुजर गए, मेरी बीवियों को रिहाई का परवाना मिला। एक मरतबा लोगों का है सज्जाद, अब रिहाई क्यों, रिहाई नहीं चाहिए, अब जाए तो किस मुंह से जाए, ना अकबर ऐसा, ना गाजी ऐसा, और ना मेरा भैया हुसैन। एक मरतबा सैयद सज्जाद को मलूम ने बुलाया, यजीद ने बुलाया, मुझे हुक्म कीजिए मैं खून बहा देने को तैयार हूँ, मैं खून बहा दूंगा। मेरे मौला ने तरफ कर कहा तू खून बहा क्या देगा, मेरे मौला फरमाते हैं कि दुनिया गदरो, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया कत्ल हो जाए, मर जाए, एक बार नहीं 10 बार दुनिया बार बार पैदा हो और फिर कत्ल हो जाए, मर जाएगा मैं हुसैन में रो रो के अपनी जान कुर्बान कर दे, 10 बार भी मरने के बाद हुसैन
इतना बड़ा रोल, तू क्या खून बहा देगा हमें खून बहा मेरे अल्लाह से चाहिए। इतना सवाल किया कुछ तो करे, हमारे तबल्लुकात वापस लौटा दे, हमारे अल्लू का हुआ जो साजो सामान वापस लौटा दे, दूसरी ख्वाहिश हमें हमारे सर वापस लौटा दे, हमारे शहीदों की जरूरत अदा रो मेरे मौला। ठीक मतबा तंजीलें करने लगी, जाते मौला सज्जाद को आप रो रहे हैं नजर पे हाथ रख, ये भी मुझे नजर आ रही है, बहुत गुनहगार हूँ, मैं नहीं देख सकती यहाँ मेरा भी, मगर मैं देख रही हूँ कौन सी बहनें मेरी सर पर हाथ मार मार कर रो रही है, कौन सी पर हाथ मार कर रो रही है। जब मैं देख रही हूँ सोचो सीधे सज्जाद आपको देख रहे बीबियों, मेरे मौला की जंजीरें उतारने की कोशिश की गई, जानते मेरे मौला ज़ियारत नैया का जुमला क्या है, सलाम मेरा उस इमाम पर कि जिसके जिस्म का गोश्त, उसकी बेड़ियां, उसकी जंजीरें, उसका ताज खा गई। तो उतरता नहीं था बीबियों, तो वो काट कर उतारा गया, जंजीरें टूटती नहीं थी लोगों, काट कर उतारी गई। हाँ दादा रो, अभी तुम्हें तीसरी ख्वाहिश क्या थी, ये पर्शेदा जो बिछाया है, हम सब वाजिब करते हैं, हमारे पर पर्शेदा बिछाना वाजिब है, क्यों? इसलिए कि ज़ैनब की पहली आरज़ू है मुझे जगह दे दे, मैं पर्शेदा बिछाऊं। अभी को मिलेगा, हाँ दादा रो, एक मर्तबा फर्श बिछा दिया गया, ज़ैनब ने चादरें बिछाई होंगी, शाम की औरतों में ऐलान किया गया होगा, जैसे आपको कहा जाता है ना, पर्शेदा बिछ गया, बीबियों आप उल्टा दो। शाम की औरतों ने आकर बैठना शुरू किया, तमाम अहले बैत की औरतें आ गई, अज़ादारों जैसी बीबियां आई ना, तबल्लुकातों ने आना शुरू किया, सराहने शुरू हुए, हर कोई कहकर रोती हाय अब्बास, हाय अली अकबर, हाय कासिम, हाय असगर, सर आ गए। अब तबल्लुकात आए, एक मरतबा एक चादर आई, तड़प कर ज़ैनब आगे बढ़ी, मुझे चादर दे दो, ये मेरी माँ की चादर, हाय चादर लेके अपने सीने से लगाया, अम्मा अम्मा मुझसे पूछो। अब करीब आया, जानते हो क्या करीब आया, एक मर्तबा तबल्लुकात में कटी हुई उंगली सामने करीब आई, मेरी ज़ैनब तड़प गई, सैयद सज्जाद करीब आए, उंगली को उठाया, हाथ अगर अंगुष्ठी को उठाया, अंगुष्ठी को उठाकर चूमा, एक मर्तबा याद आ गया, कलम ने हाथ से जेब से खंजर निकाल कर अंगूठी उतारनी चाहिए, हाथ अगर जब टूट जाती है उंगलियां, सूज जाती है ना, अंगुष्ठी उतरती नहीं थी, अंगूठी उतरती नहीं थी, काट कर उंगली तन से जुदा कर दी। हाँ सदारो, एक मर्तबा खून में डूबी हुई बालियां करीब आई, तड़प गई रबाब, करीब आई, मुझे बालियां दे दे, अब जिंदान की जाने नजर की सकीना। हाँ सदारो, किस्सा मुख्तसर, मैंने सब रिवायतें छोड़ दी, कल चहलम आ गए, सदारो आपने तैयार हो गए, बस दिल संभाल कर बैठना सदारो, और आपके घरों को सलामत रखे। जब कोई हमारा प्यारा मर जाता है, कभी पहली बार कब्रिस्तान जाते हैं, पूरे रास्ते रोते जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने प्यारे को जमीन के नीचे। हाँ सदारो, एक मरतबा हमारी तैयार हो गई, काफिले तैयार हो गए, मैंने सब मसाइल छोड़ दिए सदारो।
दारो मुझे पढ़ना है करबला में। अज़ा दारो एक मरतबा काफिला चला, जैसे काफिला करबला मुझे मालूम नहीं है कि कैसे रोती रोती सफर करके आई। और दारो जैसे काफिला करबला में पहुंचा ना, एक मरतबा मेरे वाले की कब्र नजर आने शुरू हुई ना, एक मरतबा रावी कहता है मैंने सदा सुनी, मेरे माला के साहिब ने सदा बुलंद की, दूर से घोड़ों को देखा, हमारे को देखा, सदा बुलंद की, ऐ लोगों अपने घोड़ों को वहीं छोड़ दो, हमारी को बिठा दो, ये जागीर है अब्बास। एक मरतबा ज़ैनब ने अपने आप को खड़े ऊँट से गिरा लिया, जमीन पर गिर गई, मेरी बीवी तड़प कर उठी, एक मरतबा सदा बुलंद की, एक बार फिर बोल किसकी जागीर? सदा बुलंद नहीं, अब्बास की जागीर है। नंगे बाल फिर ज़ैनब तड़प कर बोली, एक बार फिर बोल किसकी जागीर है? हज़रत अल्लाह अब्बास की जागीर। ज़ैनब तड़प गई, अब बीवियों ने दौड़ना शुरू किया, तेज कदमों से करीब आई, किसी ने अली अकबर की कब्र में अपने आप को लिफ्ट करा, कोई है कातिल, कोई है अली असगर। आजा जाओ, और बीवियों ने रोना शुरू किया, जानते हो ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब पहुंच गई अपने भैया के पास। ए मेरे हुसैन, मैं वक्त की अब्बास बनकर वापस आ गई। ए हुसैन देख मेरे हाथों पर निशान, मेरे बाजुओं पर निशान। ए भैया हर कदम पे मैंने तेरे लिए तेरी तबलीग, तेरा मैसेज, तेरा मकसद बयान किया है। हाँ ज़ादारो दिल कहता है मेरा, जाते हो और आप सबको करबला लेकर जाए। 10 चंद जुमले पढ़ूंगी, आप सबने रो लिया, सबकी आंखें नम है, मुझे नजर आ रहा, सबकी आंखें भीग गई हैं, सारा फरमान आपकी आंखों के नीचे आ गया, मुझे यकीन है। ज़ादारो अब जो जुमले मुझे पढ़ने हैं ना, मुझे आपकी चीखें बुलंद करने के लिए पढ़ने। ताबूत बरामद होगा, ताबूत किसका है? मेरे मौला हुसैन का। ताबूत उठाने वाले कौन होगा? सैयद सज्जाद, ज़ैनब, कुलसूम। हाँ ज़ादारो एक मरतबा ज़ैनब को याद आ गया, भैया सर घुमाया, दिलाए ज़ैनबिया देखा, मौला आपको करबला लेकर जाए। नमर कहती 30 कदम की दूरी पर, अज़ादारो मौला आपके भाइयों को सलामत रखे। जब जाए ना दिलाए ज़ैनबिया पे खड़े होकर जब ज़ियारत करे, पलट कर जरूर मेरे मौला की हरम की जानिब देखिएगा, और देखना मौला को मेरा भैया से कहा, ए ज़ादारो काश तुम करबला में होते। मैं देख रही थी मेरा भाई सबर नहीं पा रहा था, जख्म इतने हुसैन से संभला गया, कभी दिन पर दाएं डोल रहे, कभी बाएं डोल रहे। ज़ादारो आज हमने देखा ना सुलझना कल बरामद होंगे। कौन सा सुलझना? जिस पर हुसैन सवार था, सुलझना ने अपने आंखों को देखा, हाय मेरा आका दाएं डोल रहा, सुलझना अपने आप को दाएं कर लेता, हाय मेरा आका बाएं, सुलझना अपने आप को बाएं कर लेता। एक मरतबा जब देखा ना हुसैन से संभला नहीं जा रहा, सुलझना जमीन पर बैठ गया, चारों पांव फैला लिए। हाँ ज़ादारो हुसैन जमीन पर आ गए। ज़ादारो सब जानते हो ना ये तीर लगे हुए हैं, हाय मौला आपको वो बसीरत दे, वो बसारत दे, ये तीर इस ताबूत पे नहीं, हाय मेरे मौला के जिस्म में। अल्लाह ज़ादारो ज़ैनब फरमाती, सूर आंधी चलने लगी, मेरा भाई अल्लाह अकबर कह रहा था, मैंने देखा शिमर मलूम करीब आ रहा है, हाथ में, हाँ ज़ादारो हाथ में ले डालिए, इसमें तब करीब आ रहा है। ज़ैनब ने तड़प कर आसमान की जानिब सदा बुलंद की, अम्मा
کچھ دیر رک جا، میرے جسم سے خون بہہ گیا ہے، میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، میں ویسے ہی مر جاؤں گا، میرے ہاتھ